Hello children, you are welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gardawara. I am Amit Toshniwal. This video is for class 11th, subject accounts, chapter number 6, subsidiary books. These are the books which are used for a special purpose. So they can be called as special purpose books also. It's part number 1. See, when the business is small in size, then a few accounting books are required because size of business is small, number of transactions are less, and that will become a financial burden to the business if number of books are capped. So that will be an unnecessary burden financially. But when the business is done at large scale, so for each and every transaction and whatever financial events take place, there is a separate individual department for each, and different heads of these departments are there, supervisors are there, personal managers are there. So books are kept department wise separately. When there is a small shop of grocery, so a single 1 or 2 books are required, cash book and some other book, 1 or 2, stock register, etc. But in manufacturing units, big production units, and in industries, there are a number of departments, supervisors, managers. So each one are given responsibility to supervise, monitor and control their own departments, for which they need to keep books separately. So these are called subsidiary books. Subsidiary means helping, which helps in a smooth functioning of the business. If everything is kept in a single account department, then there is a chance of number of errors and frauds. So just to divide the responsibility and to keep all the financial events and transactions in a very systematic manner, it's very necessary to keep number of books. Okay, so these are the set of books which are used to make primary entries of the business transactions in different departments. So different transactions are recorded, they are subdivided and written in separate books. So what happens when subsidiary books are kept? It makes the work of ledger easy. Ledger means posting of an entry in ledger book. Okay, so there are on your screen now you are seeing types of subsidiary books. Some books are there: cash book, purchase book for purchase, sales books for sale, purchase return book, sales return book, and journal proper. In chapter number 5, we studied journal. In journal, business transaction on date wise, daily wise are recorded. But in journal proper, some other entries which are unrecorded or some rectifying entries or adjusting entries are done. So that is why it is given a different name, journal proper. है ना, पोस्टर अलग है, पिक्चर सेम है. पिक्चर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? जर्नल प्रॉपर में भी जर्नल एंट्रीज होती हैं, बट कौन सी एंट्रीज? विच आर अनरिकॉर्डेड, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, अदर्स. इसके अलावा भी और भी बहुत सी बुक्स हो सकती हैं. कैश बुक तो होगी ही, फॉर ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स कैश बुक रहेगी. फिर जो नीचे ये बुक लिखी हुई, इसके अलावा कुछ और बुक्स भी हो सकती है, जैसे बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये भी रखी जा सकती हैं. हाँ,
तो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए फिर डिफरेंट बुक्स जो नीचे लिखी गई हैं वो यूज़ करेंगे हम। अब क्या एडवांटेजेस हैं सब्सिडायरी बुक के? सबसे पहली बात है कि टाइम और लेबर सेव होता है अपना। क्यों होता है? क्योंकि एक आदमी पे ज़्यादा वर्डन नहीं, उसको अपने डिपार्टमेंट का देखना है, बाकी का कोई उसको मतलब ही नहीं। इसलिए क्या हो जाता है, डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, तो इससे फास्टर रेट से कंप्लीशन ऑफ वर्क किया जा सकता है। फ्रॉड नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाल सकता, उसके लिए वो खुद ही जिम्मेवार होगा, है ना। तो मैनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन राइटिंग बुक्स, इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, सो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड कैन ईजीली बी फाउंडेड, ईजीली उसको अपन फाउंड कर सकते हैं, है ना। हमको डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे परचेस के बारे में रिकॉर्ड चाहिए, परचेस डिपार्टमेंट चले जाओ, बाकी किसी से ज़रूरत ही नहीं बात करने की। सेल्स का रिकॉर्ड चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट में घुस जाओ। परचेस रिटर्न का चाहिए, परचेस रिटर्न डिपार्टमेंट में घुस जाओ। तो डिटेल्स इजी मिल जाती हैं। फिर एरर्स के चांस कम हो जाते हैं। जब बर्डन कम रहेगा तो आदमी मेंटल, उसका स्ट्रेस कम रहेगा, उसको कम काम करना, तनाव कम है। काम नहीं तो फुर्सत बैठा है, कम तनाव में काम करेगा तो गलतियों की संभावनाएं कम रहेंगी। तो ये कुछ ऐसे फ़ायदे। इसके अलावा और भी इजी मतलब है कि यदि गलती हो गई है तो उसकी चेकिंग करना इजी हो जाएगा। जो ट्रांजैक्शंस लिखे गए उनकी पोस्टिंग करना आसान हो जाएगा। बुक्स को हैंडल करना आसान होता है। छोटी छोटी बुक्स रहती हैं रजिस्टर टाइप में, तो उनको हैंडलिंग, उनकी प्रॉपर केयरिंग करना आसान होता है। अकाउंट्स की सिक्योरिटीज़ रहेगी। क्यों रहेगी? मान लो कोई एक डिपार्टमेंट की बुक्स मान लो गुम गई, कुछ हो गया, मिसप्लेस हो गया, तो अदर डिपार्टमेंट की तो सेव है, तो उन ट्रांजैक्शंस के बेस पे हम वो ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये अदर उसके फ़ायदे हो सकते हैं आपके पास। अब आ जाते हैं अपन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, कैश बुक पर। तो कैश बुक क्या है? उसका नाम ही है, जैसा नाम वैसा काम। कैश बुक इज़ रिलेटेड टू ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, मतलब रिसीविंग मनी एंड मेकिंग पेमेंट्स, बस। उसके अलावा बाकी उसको किसी और ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं होगा। आया राम गया राम, पैसा आया तो लिख लो रिसीट साइड में, और यदि गया तो उसको लिख दो पेमेंट साइड में, दैट्स इट, ख़त्म। तो उसके सेकेंड चैप्टर से तुम पढ़ रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम वी फॉलो। तो in double entry system it affects on 2 accounts out of which we are making cash book, so it will have 2 sides, debit side and credit side, and each side will have 5 columns. I'll show you the pro forma later. ठीक है, तो this is not only the subsidiary book of the business, it is also a principal book, main book भी है ये। अकेली हेल्पिंग नहीं है। मेन क्यों है? बिन पैसा सब सून, पैसा नहीं तो बिजनेस कैसे होगा? तो मनी इज द ब्लड, सोल, एवरीथिंग ऑफ द बिजनेस। बिना पैसे के कुछ संभव नहीं हो सकता। तो नॉट ओनली सब्सिडायरी बुक, दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल एंड मेन बुक ऑल्सो, कैश बुक। ठीक है, सो ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। मनी रिसीव्ड, इट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड. मनी गोज आउट, इट मीन्स पेमेंट्स आर मेड, रिटन ऑन द क्रेडिट साइड. अब कैश बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स पर नज़र डाल लो ज़रा एक बार। कैश ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे, ये लेजर का एक हिस्सा होता है। 2 एस्पेक्ट रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट। जो उसकी डेफिनेशंस है वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। हाँ, चौथा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा होगा हमेशा, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में सबसे नीचे लिखा होगा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में सबसे पहले, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में सबसे लास्ट में। ठीक, कितना पैसा बचा और कितना था। रिकॉर्ड ऑफ डिस्काउंट, यदि मान लो कैश बुक, अभी हम टाइप बताएंगे तुमको इसी वीडियो में, तो तुम ध्यान से देखना। यदि मान लो कैश डिस्काउंट दिया गया है किसी ट्रांजैक्शन पर, तो उसका रिकॉर्ड भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको
डबल कॉलम कैश बुक बनाना पड़ती है। डबल कॉलम में हम डिस्काउंट का कॉलम और ऐड कर देते हैं, तो उससे हमको डिस्काउंट का नॉलेज भी पता रहता है। बैंक ट्रांजैक्शन यदि रिकॉर्ड करना है तो डिस्काउंट की जगह बैंक कॉलम डाल दो, और यदि तीनों चाहिए तो फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना लो। तो कैश बुक के कितने प्रकार होगा? 4। 3 तो हमने अभी बता दिए। सिंपल कैश बुक जिसमें केवल कैश का रिकॉर्ड रहेगा, डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट या कैश बुक विद बैंक, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। तो ये ट्रिपल कॉलम बन जाएगा तुम्हारा। अब फोर्थ कौन सा हो गया? पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब होता है स्मॉल। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे खर्चों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश। छोटे मोटे खर्चों के लिए बार बार हेड अकाउंटेंट को, हेड कैशियर को परेशान नहीं किया जाता। हेड कैशियर एक कुछ निश्चित अमाउंट जो होता है वो छोटे से अकाउंट, मतलब जो छोटा वाला अकाउंट है, जूनियर अकाउंटेंट उसको या जूनियर कैशियर उसको दे देता है हर महीने में। उसमें से वो खर्चा करता रहता है, लिखता रहता है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बिज़नेस के छोटे मोटे खर्चे वो उसमें नोट करता रहता है। तो उसके लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। अभी चारों के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे बाद में फिर से विस्तार से, ठीक है। कैश अकाउंट इज़ अननेसेसरी। यदि कैश बुक बनाई है तो कैश अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बनाया जाता है। ये भी हमने तुमको बता दिए सारे कॉलम्स, ये जो जिनके बारे में हम बात कर रहे थे अभी। टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंपल या सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। डबल कॉलम में हमेशा डिस्काउंट नहीं होता। डबल कॉलम मतलब कैश बुक विद डिस्काउंट या कैश बुक विद बैंक, एनी वन ऑफ दीज टू। ट्रिपल कॉलम में तीनों रहेंगे, कैश बुक मतलब कैश का कॉलम, डिस्काउंट का और बैंक का, दोनों साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो जो सिंगल या सिंपल कॉलम कैश बुक है उसका प्रोफार्मा देख लो तुम अपने उस पे स्क्रीन पे। डेबिट साइड में रिसीट यानी आया राम, पैसा आ गया तो इस तरफ लिख दो, और क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा? गया राम यानी पेमेंट्स। 5 कॉलम होते हैं, पहला है डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स जिसमें एंट्री लिखेंगे कि पैसा किस चीज़ से रिसीव हुआ है। वाउचर नंबर, तो वाउचर नंबर क्या है? जो वाउचर का नंबर होता है जिससे कि ट्रांजैक्शन का प्रूफ पता चलता हो। उसका सीरियल नंबर हो सकता है किसी रिसीट का, पेमेंट मेंशन जो भी कुछ है, तो उसमें हम इसमें लिख सकते हैं। लेजर फोलियो, ऑन विच पेज in ledger book the following entry or following transaction is posted, that page number is mentioned here, and amount same happened in credit column। बस ध्यान रखना कि डेबिट वाला कॉलम रिसीट के लिए रहेगा, पैसा मिला, और क्रेडिट वाला पैसा गया उसके लिए रहेगा, ठीक है। फिर एक चीज़ और है इसमें, बैलेंसिंग इन ऑफ कैश बुक एंड कैरिंग फॉरवर्ड। तो ऐसा तो नहीं होगा कि रात के समय या पूरे दिन भर में गुल्लक पूरी खाली हो जाएगी, पंजी भी नहीं बचेगी गुल्लक में दुकान में, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ ना कुछ पैसा तो बचेगा, जो पैसा बचेगा वो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, इज इट। तो सपोज़ उसको मंथली भी बनाया जा रहा है, मंथ वाइज तैयार किया जा रहा है, तो एक मंथ का जो पैसा जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र होगा, उसको फेंक तो देंगे नहीं, रखा रहेगा वो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैश बुक का जो बैलेंस रहेगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, यानी डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के टोटल से ज़्यादा आएगा। यानी जब तुम इसकी बैलेंसिंग करोगे कैश बुक की, तो फर्स्ट यू विल ऐड ऑल द अमाउंट ऑफ डेबिट कॉलम, देन यू विल सब्ट्रैक्ट ऑल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट कॉलम, वॉट एवर रेसिडुअल इज लेफ्ट विद यू, दैट इज बैलेंस लेफ्ट, कैश बैलेंस। So it is written as what? By balance carried down, and when to the next month it is brought down, so we write to balance BD, short form B/D, यानी कि brought down, ऐसा उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक एंड कैरिंग फॉरवर्ड। अब फिर से एक बार हम नोटिस कर लें उस बात को कि हमेशा डेबिट बैलेंस क्यों रहेगा। डेबिट का कॉलम किसका है? रिसीट। रिसीट यानी पैसा आया। और क्रेडिट का कॉलम
पेमेंट यानी पैसा गया। तो एक सिंपल सा फिनोमेना है, सोचने वाली बात है, जितना पैसा आएगा नहीं उससे ज़्यादा पेमेंट बिजनेस में हो नहीं सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल है। सीधी सी बात है, तुम्हारे जेब में यदि 100 रुपये हैं तो तुम 150 खर्च नहीं कर सकते हो क्या? नहीं, मैक्सिमम 100। यदि डेबिट का बैलेंस और मतलब डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस निल बचा, 0, और ऐसा संभव नहीं होता बिजनेस में। सम मनी इज़ लेफ्ट, कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो फाइनली मूल मुद्दे की बात क्या है? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? ये हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा डेबिट का बैलेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि मनी कैन नॉट बी स्पेंट मोर देन द मनी रिसीव्ड। जितना पैसा मिला है उससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके बारे में कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक क्या होती है। फिर धीरे धीरे अपन एक एक बुक पढ़ेंगे। थैंक यू।